पर लिख सकते हैं। एंड प्रेफर्ड लैंग्वेज के बारे में तो बात हो चुकी है। अगर किसी को प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश में चाहिए तो प्लीज चैट पर लिख दीजिए एंड प्लीज ट्राई टू कीप योर वीडियोस ऑन सिंस दिस विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन। I will be the host of this session. I am Akanksha Singh. I am a BTech Y20 student. मेरा डिपार्टमेंट CSE है और मैं क्लास 10th को बायो पढ़ाती हूँ प्रयास में। I have Atika as my co-host. Hi everyone, I am Atika. मैं PhD स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी से PhD कर रही हूँ यहाँ IIT कानपुर में। और हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र नारायण है। डॉक्टर अमरेंद्र नारायण भैया यही के IIT कानपुर के MSc किए हुए स्टूडेंट हैं। इन्होंने फिजिक्स से MSc किया हुआ था and after that he completed his PhD from Mississippi State University, US. पोस्टडॉक भैया ने IIT बॉम्बे से किया है और at present he is an assistant professor at Veer Kunwar Singh University, Ara, Bihar. So we'll begin with Q&A. भैया सबसे पहले आपसे क्वेश्चन हमारा यही है कि आप IIT कानपुर में अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में कुछ बताइए। आपके स्टडीज के अलावा व्हाट अदर एक्टिविटीज वर यू एंगेज्ड इन व्हेन यू वर डूइंग मास्टर्स हियर? ये लोगों को मेरा नमस्कार। सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है तो एक ऐसा थम्स अप करो। So, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे एक ठंडक मिलती है ना मन को। बहुत अच्छा लग रहा है तुम सब लोगों को ऐसे सामने से देख करके। मैं 2003 बैच का था। 2003 batch is when I joined in. And I had applied for IIT Kanpur for one small single reason, that the form was free. So a friend of mine, Bharat Chug, he was applying for MSc everywhere and he gave me the incentive. यार सारे IITs में इतने रुपए का ड्राफ्ट है, उतने रुपए का ड्राफ्ट है। IIT कानपुर में 0 रुपीज का ड्राफ्ट है। So 7 रुपीज का प्रिंट आउट पड़ता था। 3 पन्ने थे, तो 7 3 21। हाँ, तो 21 रुपीज लगेगा बस प्रिंट आउट का। चल अप्लाई कर देते। तो किरोड़ीमल कॉलेज से 9 of us applied. And I was one of them. I was not applying anywhere. IIT Kanpur में कहाँ? I wanted to get a job soon. I had 3 sisters. The way things go in India, मुझे लगता था कि मुझे तीनों बहन का दहेज देने का पैसा इकट्ठा करना है। And जब IIT कानपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ था, I remember a friend of mine, out of excitement, called up my parents and informed him कि उसका सिलेक्शन हो गया। And my father said, "Oh, मतलब अभी और पढ़ेगा ये?" फिर later, somebody in his plant, I have done my education from Bokaro Steel City, Jharkhand. It's currently in Jharkhand. That time it was Bihar initially. So somebody in his plant was talking कि किसी का तो IIT कानपुर में इधर से सिलेक्शन हुआ, बोकारो का कोई लड़का। Then for the first time he felt कि this is something useful. But I had this urgency that मुझे तो कुछ तो जल्दी से करना है। I don't have time. I have to start earning so that I can pay दहेज। Even as a student in IIT के, पता है उस समय दिल्ली में मेट्रो बन रहा था। So there would be small jobs, मैट्रिक पास के लिए, 12th पास के लिए, ग्रेजुएट के लिए, and I used to apply for that. It's a funny thing. I was not ambitious. My only ambition was कि I should quickly get a job so that I can help my father in arranging for all that money. So finally उन सब friends में मेरा हुआ, and the shape that I got, the shape that my personality got in IIT Kanpur
has remained with me, and I'm very touched with this. Thank you to you all. I cannot thank the buildings, but it's you all, which represents IIT Kanpur. Thank you. जी भैया। So देखो IIT कानपुर में मैं पढ़ने के अलावे, when we were being introduced, I was very impressed with H.C. Verma, and he introduced himself as a poet. And H.C. Verma used to run this Shiksha Sopan. So this was like, मैं उनको और जानना चाहता हूँ, ऐसा मन में इच्छा था. पता है, it's a funny thing, but when I look at my volunteering, when I look at that which made me volunteer, I realized that to begin with, people don't connect with ideas. मैं भूख मुक्त भारत चाहता हूँ. Are you interested? No. मुझे एकदम बराबरी ला देना समाज में. Are you interested? No. People connect with people. मुझे वो आदमी बहुत पसंद आ गया. हाँ, तो किसी को तो जयप्रकाश नारायण पसंद आ गए. तो जयप्रकाश नारायण ने जो बातें कहनी शुरू की कि नहीं समाजवाद जरूरी है, तो उन लोगों को समाजवाद समझ में आने लगा. हाँ, when we talk about the pyramid, the bottom of pyramid works this way, and the bottom of pyramid is not just about some set of people that somewhere out there. It's about you also. You are in different phases in your own life, in your own experiences, and the bulk of that, like the bottom of pyramid, is the space where you can connect more easily with people than with ideas. So I connected with H.C. Verma. And H.C. Verma was this mad person who would be like, Sunday ko bhi office mein hai. I said, kyun Sunday ko kyun? Bole, are, sun is also coming up on Sundays. Flowers are also blooming. Air is blowing. What is different on Sunday? Why do you need a day for holiday? You must be, if you are doing something which is against your nature, then you need a holiday. You need a break. If you're doing something which is aligned to your nature, you don't need a holiday. You can do that every day, all your life. All those small things just added up and made a human being named Amarendra Narayan Bharat. I had my liking for physics experiments. So, वो तो physics experiments करते थे, कराते थे, और देश में अलग-अलग जगह जाकर के टीचर्स को ये बताते थे कि कैसे फिजिक्स को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते थे. I became part of that team also, and I became part of Shiksha Sopan. Not because I was a person looking out for something great, not because I was a person who wanted to bring equality. It was because of my attraction for a human being. देखो, इसलिए भारत में जो लोग मानक बन जाते हैं ना, जैसे राजनेता, उनके लिए स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. You have to be like this. You cannot have a secret life. Privacy is okay, secrecy is not. देखते हो ना, बहुत सख्त होता है उनका जीवन. गांधी को देश मानक क्यों मान पाया? क्योंकि गांधी जी अपने मन के सभी भावों को अपनी किताब में रख दिए, कह पाए वो, है ना. लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया ना, तो फिर मुझे याद है एक प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों को अपने घर में बुला करके शिक्षा सोपान में दो बच्चों का समूह बना. And these two students would come to your room and you would have to give them summer course on, it was a summer course for those students. You have to teach them computers. Computers उनको teach करना मतलब समझ रहे हो ना, Excel सिखाना है, Word खोलना है, सेव करना है, उसमें थोड़ा सा वो टाइप कर सकते हैं क्या. They getting acquainted with these things. Practically this is what they get in a 6 month diploma, DCA जो कहलाते हैं ना, outside, and for which they pay a hefty amount. जब वो बच्चे आते थे ना और कंप्यूटर का बटन दबा करके ऑन करते थे, the glitter on their eyes, I tell you, diamond cannot beat it. वो इन्फेक्शन हो गया फिर मुझे. फिर तो there was no going back. फिर तो
ये तो ऐसे है ना, कुछ भी करके किसी तरह से एक बार उनको वो कंपनीज करते हैं ना कि आप हमारा शैम्पू मत लो, ये फ्री में सैशे दे रहे हैं हम, ले जाओ इसको घर में ले जाओ। तो वैसे ही एक बार तुम चखा दो किसी को, प्यार, enthusiasm, ये चीजें ही ऐसी है ना, you just give a flavor of this to someone, just a little bit and see, देखो फिर उसके बाद they don't need a book, you know, they don't need any sermons, any morals, nobody need, they don't need Quran or Gita to tell them that you should be a nice person, they are just listening their inside, you know, you cross that line। तो मेरे लिए वो हुआ, वर्मा सर के कारण मैं उसमें जुड़ा, और जब जुड़ा तो आंखों की जो चमक मिली ना मुझे याद है जब मुझे यहाँ पे पूछा जा रहा था फ्रेशर्स पार्टी में यूएस में मेरी यूनिवर्सिटी में कि व्हाट इज इट दैट यू लाइक द मोस्ट, हर कोई अपने अपने आंसर्स दे रहा था एंड माय आंसर वाज लाइक वेरी डिफरेंट कि आई लाइक द ग्लिटर इन आईज ऑफ समबडी हु फील्स लाइक एकदम हो गया, बस पता नहीं एकदम लगता है कि अब मिल गया सब कुछ। और वो बच्चों में जितनी जल्दी मिलता था ना, मुझे बच्चों को पढ़ाने में, उनको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, उनको तुम और वो ट्रिक बता दिए कि कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का याद रखना है, ये सब उनको एकदम लगा कि वाह भैया, कोई तो बच्ची एकदम भैया करके गले लगा ले, उसको समझ में नहीं आ रहा था और उसने बहुत कोशिश किया था, सडनली उसने जो ऐसे तुमको पकड़ा ना, यू फेल्ट दैट भगवान ने तुम्हें छू दिया। सो बस वो इन्फेक्शन हो गया मुझे। तो भैया ये जो वॉलंटियरिंग के एक्सपीरियंसेस थे आपके सोपान में, हाउ डू यू थिंक these experiences they contributed later in your life? उस टाइम पे तो शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि आगे आने वाली लाइफ में कैसे क्या असर डालेंगे ये एक्सपीरियंसेस, बट बाद में लाइक टुडे इन रेट्रोस्पेक्ट व्हेन यू लुक बैक, व्हाट कैन यू थिंक कि वो कैसे इन्फ्लुएंस किए हैं आपको, आपकी पर्सनालिटी को? मुझे लगता है कि the fact that I became a person who can hear the person speaking from in front, rather than me saying I want this, I want this, I want this, that has made me, वो सफारी का ऐड आता है ना, द कंप्लीट मैन, मुझे लगता है कि that has completed me as a human being। मैं देखता हूँ कि नॉर्मल बातचीत, पति पत्नी की बातचीत हो, फ्रेंड्स की बातचीत हो, सीनियर जूनियर की कलीग्स की बातचीत हो, everybody is just so particular about this is what I want to say, this is what my opinion is। I have seen, so we have been in groups where 5 of my friends are sitting together in an air conditioned room and we are discussing how the problems of poverty in India can be solved, and everybody has their own opinion, हाँ कि ये ऐसे हो जाना चाहिए, वैसे हो जाना चाहिए। Nobody is willing to switch off their AC to maybe give some electricity to somebody who is not getting electricity। मतलब even I was not there, I'm just saying that in those conversations going through that, I have seen that we are not willing to listen, we were only wanting to ये करो, ये सॉल्व कर दे, है ना। तुम देखोगे कि even while watching a cricket match, the moment Sachin Tendulkar loses a ball, there are people saying अरे यार इसको ऐसे खेलना चाहिए था, है ना, मोदी जी को ऐसे करना चाहिए, है ना, ये ठीक से कर नहीं रहे हैं, ये ऐसे ऐसे ये वाला पॉलिसी लाना चाहिए। We sitting in our rooms can easily do that। That the intensity of the experiences during volunteering made me a listener। I realized that from there the solution has to come, from there I have to hear what he needs, and no matter what else you can give, howsoever precious that may be, it's of no use to that person। एक लड़का था, वो मेरे यहाँ आता था, ऐसे शिक्षा सोपान का ही था, कुछ तो बात थी कि जिसके कारण वो मेरे घर पे आता था, मतलब मेरे हॉस्टल रूम में आता था। I was in D214 that time, D214 Holland, and
वो लड़का मुझे याद है आकर के किसी बात पे शेयरिंग थिंग्स दैट वाज गोइंग ऑन इन हिज हेड, वो किसी एक जाति विशेष की बुराई कर रहा था कि ये वाली जाति के लोग बहुत बुरे होते हैं भैया, पता है उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। एंड इट जस्ट सो हैपेंस दैट आई हैपन टू बी फ्रॉम दैट सेम कास्ट लाइन। अभी देखो वो उस सेशन में, बिकॉज पिछली रात को उसके घर में कुछ लोग आके बवाल किए, बदमाशी किए, उसके दिमाग में एक धारणा बना दी गई कि इस जाति के लोग बुरे होते हैं। अभी देख रहे हो वो उनकी कंडीशनिंग को सिर्फ वही देख रहे हैं। सोल्यूशन हैज टू कम फ्रॉम देयर। एंड विथ ऑल माय इनोसेंस आई वाज लुकिंग एट इट कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। मैं आई मुझे याद है मैं उन दिनों भी बोलता था अपने पापा को कि मैं अपने बेटे को जाति बताऊंगा ही नहीं। ये चीज, ये एक प्रॉब्लम है। And in fact, a step towards that only is this Bharat. A lot of you might have noticed that I've kept all of my friends did this. जाति सूचक शब्दों को हटा करके हम लोगों ने अपने नाम के पीछे भारत लगा दिया। जिसके नाम में सिंह या पांडे या शर्मा था, उन्होंने वो हटा करके भारत लगाया। मेरे नाम में कोई जाति सूचक शब्द था ही नहीं। My father used to think कि by the time I grow up, people would be known by their character, not caste. तो वो सोचे कि caste को रखना ही नहीं है नाम में। But that is not how it remained, at least in this part of the world where I am doing my job. But तो फिर मैंने explicitly, अभी यहाँ पे कोई मुझे आरा में पूछता है ना कि आपका नाम क्या है, I say अमरेंद्र नारायण भारत, because initially I noticed that when I would say अमरेंद्र, people would say नहीं second name क्या है? I would say अच्छा अमरेंद्र नारायण। तो बोलते नहीं, लेकिन मतलब they would get to the caste. So I have made this my way of answering that I will not tell you. I'm not going to talk about it. अमरेंद्र नारायण भारत, पूछ लो नाम में और चौथा कोई वर्ड है क्या? I will not talk about it. But देखो वो बच्चा, उसके एक्सपीरियंसेस अलग तरीके के हैं जो कि हम तुम अपने हॉस्टल रूम से सोच ही नहीं सकते। और ठीक है, हमारे एक्सपीरियंसेस कंडीशनड हैं, not for a bad reason. IIT Kanpur in my days used to spend 17 lakh rupees on a single student every year. Think the amount of money that has gone into you becoming you. And इस पैसे में उसका भी पैसा जाता है जो रिक्शा चला रहा है। It's not just वो जो टैक्स से तुम्हारे पापा देते हैं, मतलब इवन एक साबुन जो खरीदता है ना रिक्शा वाला, वो ठेला वाला, वो साबुन में पैसा सेल्स टैक्स में कट रहा है, जो कि जो हमें तुम्हें पढ़ाया जा रहा है जिससे। So we are already in debt. Okay. So me becoming a listener, me becoming a person who knew that the solution has to come from there, wherever, whatever that is. If it is a conflict between me and my wife, the solution has to come from there. Let me become a listener first. That has affected me as a person. That has made me that has brought completeness in me as a human being. I wonder what would happen if I did not go through all that. Interesting point. I think listener बनना ही complete person, complete human हम लोगों को बनाता है। आकांक्षा, you have next question? हाँ भैया, हम लोग ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे जब आप IIT बॉम्बे में थे या फिर जब आप USA में थे, तो वहाँ आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती होंगी, रिसर्च के लिए जो इक्विपमेंट मिलता होगा और जो एनवायरनमेंट मिलता होगा, वो काफी अच्छा होगा एज कम्पेयर टू जहाँ बिहार में आपको जो भी फैसिलिटीज मिली होंगी। तो जो आपका ये डिसीजन था कि यहाँ से मूव करके बिहार जाना है, जो भी आपके मन में जो आपका थॉट प्रोसेस था और फिर एडजस्ट करने में जो डिफिकल्टीज थी, उनके बारे में बताइए। पता है, when people, whether it is a question that is being asked, it is happening from the space of
our head, isn't it? But you know, in yoga, we talk about this, that the plane of emotions is deeper than the plane of your thoughts. देखो, मुझे लाल रंग का शर्ट पहनना है या व्हाइट कलर का, this gets decided by my head कि मैं वहां जा रहा हूँ, मेरे पैंट ये कलर का है तो मुझे शर्ट ये कलर का पहनना चाहिए, या शर्ट पहनना चाहिए या टी शर्ट पहनना चाहिए. This gets decided by our head, है ना? But whether to wear clothes or not, it is not a decision of the head, isn't it? It comes from inside. It's who you are, that this oozes out from inside, isn't it? So the wanting was not logical at all. It was not driven by logic. So I will be giving a couple of logic now, which I gave to myself and to my colleagues. But those are all things that I constructed from the raw material that was available around. मुझे याद है जब अन्ना हजारे का अनशन चल रहा था, तो do you guys remember what I'm talking about? अन्ना हजारे का अनशन चल रहा था. This was sometime back. 2012 के अराउंड. हाँ. So some people in Atlanta, which was like 5 hours of drive from my place. I was living in Virginia where my lab was, Jefferson Lab, Virginia. And some 5 hours drive was this place, Atlanta. And some people had assembled there to express support for Anna Hazare and for the fasting he was on. So मैं अपने फ्रेंड के साथ to be the country needs. What is the reason? No reason. No reason. Honest speaking is no reason. I'll give you reasons if you want. And I remember when we had driven about 2.5 hours, we had crossed about 50% of it. And then, right then, I got the news that the group has dispersed there because of some development that happened in India. I don't remember what that was. So we turned around. We turned our car and we came back, started back. But मुझे याद है कि मैं उस समय में भी अन्ना हजारे ऐसे अनशन करते थे, तो मैंने कहा था कि मैं दिन में एक ही बार खाऊंगा. So I used to take dinner only. कि कुछ तो करे. Not because, so मेरे भूखे रहने से कुछ भी बदल रहा था क्या? Absolutely not. But it was an inner pull that you cannot ignore. I just wanted to do something. मेरे फ्रेंड्स आके बोलते थे, तेरे अन्ना हजारे के तो भूखे रहने से सरकार डरेगी, लोकपाल बिल आ जाएगा, ये होगा वो होगा. तेरे भूखे रहने से क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है. मैंने कहा फिर भी मैं जब अन्ना हजारे को फिर भी न्यूज में देखूंगा शाम को, तो मुझे लगेगा कि दादा मैंने भी कुछ तो जो मैं कर पाया मैंने किया, है ना. वो होता है ना कि राम जी का जब सेतु बन रहा था ना, वो सेतु बन रहा था रामेश्वरम और उसके बीच में, तो गिलहरियां भी पत्थर फेंक रही थी कि चलो मैंने भी अपनी तरफ से किया. मेरे करने से कुछ नहीं होगा, बट आई विल डू व्हाट आई कैन डू. तो it was an inner urge which made me do those things. चलो, अभी coming back to the specific question that Akanksha has placed. What drives us? That is what dictates all our decisions. So did I want to become a super researcher? No. By that time, so even in Mississippi, I had established a yoga and meditation club. I used to lead a yoga session there, 1.5 hours every week, just once. I remember going through all the trouble that I had to go through the official procedure of the university to explain them that we are not going to convert anyone.
this is not a conversion process. This is just something where we teach yoga. They made us write so many things, and finally they agreed कि ठीक है, in yoga you will not convert anyone to Hindus. But either way, so मेरे अंदर वो जो ग्लिटर देखने का इच्छा, भूख जाग गया था ना, that kept driving me at every spot. Anything lesser than that was not satisfying enough. So I have been through the wows of research, जहाँ पे like in IIT Kanpur, I remember when I first made my solar cell. I was working on organic solar cell and using CNV and MEV. We were able to first. I was the first. My lab was the first lab to make organic solar cell. और जब पहली बार वो आया ना रिजल्ट, तो मैंने रात को 8:30-9 बजे अपने सर को फोन किया था. वो वाव मोमेंट्स शुरू से अंत तक बहुत अच्छे रहते थे. But nothing matched that glitter that I talked about. वो लोगों के आंख में जो चमक देखते थे ना, खुशी का, जब उनको कुछ थोड़ा सा मिल जाता था, किसी प्यासे को पानी दे दो तो देखो जो मिलता है. Nothing was able to match that. So my motivation remained there. So when I was coming back from there, a lot of my friends told me कि तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें जितना मदद करना है तुम करो ना, यहाँ से पैसे भेजो ना, तुम करोड़ों में पैसे भेज सकोगे. मुझे लगा, मैंने कहा कि जहां आईपीएल में धोनी के एक बॉल जो वो फेंक रहा है उसकी कीमत 1.25 लाख रुपए है. एक गेंद जो वो फेंक रहा है, वन बॉल दैट ही थ्रोस. डू यू थिंक इंडिया इज लो ऑन मनी? वहां पे हॉर्स रेसिंग होती है क्या? भारत में पैसों की कमी है क्या? बिल्कुल नहीं. One point of time during my PhD, there was a time when the richest person on the planet was Ambani. It was not Bill Gates or Warren Buffett or anyone else. It was Ambani. One point of time. So India was not low on money. हम लोग में ट्रस्ट डेफिसिट है कि हम लोगों में कोई एक आदमी पे भरोसा कर सके. मतलब we need people. We need human beings who are willing to come forward and take responsibility. कि ये चीज मैं देख लूं, बाकी को चिंता नहीं कर. We need people whose integrity cannot be questioned. फर्क ही नहीं पड़ता कि वो 1 रुपए की बात हो या 1 करोड़ की बात हो या फिर किसी और चीज की, या तुमको एक आइलैंड ही गिफ्ट कर देंगे, फर्क ही नहीं पड़ता वो अमाउंट क्या है, नेगोशिएशन किस ग्राउंड पे. द इंटीग्रिटी कैन नॉट बी क्वेश्चन. ऐसे लोगों की बात है, वहां पे जरूरत है. तो मैं पैसे भेजूंगा किसको? मैंने कहा मुझे पैसे नहीं भेजने, मुझे अपने आप को भेजना. देखो वहां पे यूएस में जितने लोग जाते हैं ना, सब लोग यही बात करते हैं. उनके जोक्स यही होते हैं कि जब हम लोग भारत जाएंगे ना तो ऐसा करेंगे, जब हम लोग भारत जाएंगे तो वैसा करेंगे. मुझे याद है मेरे जो मुझे एक राखी बांधती थी निमिषा श्रीवास्तव, उसकी बात के बाद फिर कुछ जो बात हो रहा था ना, उसमें मैंने कहा कि तुम लोग देखो, कोई चीज होती है ना तो भारत को ढूंढते हो. खाना खाना है कहाँ? कोई लॉन्ग ड्राइव पे गए तो खाना कहाँ खाना है? तो इंडियन रेस्टोरेंट. अरे आज वीकेंड है तो कहाँ चले जाएं? चलो वो वहां पे अटलांटा में एक मंदिर है ना, वहां चलते हैं. बर्मिंघम में मंदिर है ना, वहां चलते हैं. यू लुक फॉर अ प्लेस वेयर देयर इज अ इंडियन टेम्पल. तो किस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहना है तो वहां पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, वहां पे रहते हैं. कॉमन देयर एंड पीपल एक्सेप्ट इट. यू डोंट वांट दैट, यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट. तुम्हें पत्नी कैसी चाहिए? तो तुम्हें भारत चाहिए पत्नी में. तुम्हें है ना, यू वोंट एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स. तुम्हें बेटा कैसा चाहिए? तो भारत चाहिए. मतलब यू सी द कंपोनेंट ऑफ इंडिया एवरीवेयर यू वांट. व्हाई डोंट यू गो बैक टू इंडिया? So I just said कि I am going back to India. बाकी तुम लोग सोचो. अच्छा, I am not a very big shot. तो मैंने सब जगह अप्लाई किया. ये हुआ बस कि जैसे ही मेरा IIT बॉम्बे में हो गया ना, after that I did not apply again. One day my advisor came very happily and said that you were talking about going to India. See, my PhD is in a field which is not
very prospering in India. It's experimental nuclear physics, and only developed countries have research laboratories for experimental nuclear physics. So मुझे जब मतलब मैं बोलता था और मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरा करियर क्या होगा, मुझे नौकरी कौन देगा, तो मेरे एडवाइजर एक दिन आए कि आई हैव फाउंड अ पर्सन इन इंडिया हु विल अंडरस्टैंड योर स्किल्स एंड विल पॉसिबली बी एबल टू यूज यू. सो वो आए और उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये है IIT बॉम्बे में पर्सन, एंड आई रोट एन ईमेल टू हिम एंड ही क्रिएटेड अ पोजीशन फॉर मी, एंड देन आई गॉट इन. और उसके बाद से मैंने भारत में इतनी जगह अप्लाई किया, देखो उसमें भी आई डिड नॉट नो. मुझे सब लोग बोलते थे कि तेरा दिल्ली में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, लेकिन बिहार में नहीं हो सकता, बिकॉज बिहार में यू नीड टू पे अ लॉट फॉर गेटिंग सेलेक्टेड. तो आई सेड कि भाई ये प्रोजेक्ट भगवान का है, मेरा है ही नहीं, दिस इज नॉट माई डोमेन, आई विल अप्लाई एवरीवेयर. आई थिंक more than 50,000 rupees I spent in just applying everywhere. हर जगह 500 रुपए का ड्राफ्ट ये वो सब लगता है ना. गुवाहाटी, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, all extremes, गुजरात, everywhere I have applied. और मुझे ये लगता था कि मुझे इंटरव्यू में कहीं आ गया मैं तो उसके बाद आई विल नॉट बी रिजेक्टेड. Nobody can reject me in an interview, in a physics interview. But the first interview I got was from BPSC. This was the first job that I had applied back in my United States. जब मैं अपनी PhD लिख रहा था तो मेरे पापा को सरकारी नौकरी की बड़ी चिंता थी कि सरकारी नौकरी किसी तरह से मिले. मुझे लगता है बिहार में सब लोगों को ऐसे होता है. आई डोंट नो आप सब लोगों के साथ कैसे है. तो कुछ भी हो, सरकार थोड़ा कम सैलरी हो, सरकारी नौकरी. खैर अभी वो पछताते हैं कि सरकारी नौकरी करके भी तुम तो 8-9 बजे तक काम करते हो, फायदा क्या हो. लेकिन सो पापा ने तब अप्लाई करवाया था और उसका ज्वाइनिंग लेटर, उस समय फिर इंटरव्यू कॉल आया, एंड इन दैट इंटरव्यू आई गॉट सेलेक्ट एंड आई गॉट दिस जॉब. और देखो मैंने इस मामले में टोटल ईमानदारी रखी थी. मैंने अपने भगवान को बोला था कि अब मैं इतना तो आदमी हूँ नहीं कि जहाँ अप्लाई कर दूंगा वहाँ हो जाएगा. तो देख लो, सोच लो, मैं चाहता हूँ कि बिहार में हो, लेकिन आप जहाँ दे दोगे ना, मैं उसी को अपना भविष्य समझकर वहीं पे रह जाऊंगा. मैं ये नौकरी बदल के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और बेहतर और बड़ी नौकरी के चक्कर में ये तो नहीं करूंगा. Whatever you give me, whatever is my first job, that will be my job. और देखो मुझे फर्स्ट जॉब वही मिला जो मेरा नेटिव टाउन था. बचपन से मैं यही कहता आया था कि मैं कहाँ का हूँ, आरा का हूँ. पापा ने सिखाया था कि बेटा बोलना आरा के हैं, और लेकिन आरा कभी जानते नहीं थे. It just so happened that my father grew up there. He took birth there, he grew up there. So my family has its origin there. I never came to Ara, except for some occasions, marriage and such. I don't know, Akanksha, if I satisfied you with the conversations I was making, but probably it was some way towards that. देखो पता है, जैसे अगर कैसे किसी लड़के को किसी लड़की से शादी करनी होती है ना, तो पापा को कैसे रीजंस देता है वो. पापा पता है वो लड़की का, उसके पापा का जॉब वहाँ है, वो बहुत बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी बहुत सुंदर है वो, है ना. लेकिन ये सब झूठ होता है ना, होता है ना. वास्तव में तो दिल लगा दीवार से तो परी क्या चीज है. सच यही होता है ना. That's why you actually do what you do. Because you want to. Yeah. So आप जब बिहार में हैं अभी भी, और जब आपके सोशल वर्क वगैरह में भी, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे आपने क्या ये अंदर की जो छोटी छोटी गंदगियां थी मेरे अंदर, जो शायद थोड़ी सुषुप्तावस्था में थी.
शायद जो मुझे लग रहा था कि मैंने उस पर विजय प्राप्त कर लिया है, वो जागी। देखो, एक ऊंचा सुनने वाले को किससे दिक्कत होती है पता है तुम्हें? दूसरा ऊंचा सुनने वाले से दिक्कत होती है ना? अगर अगर मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूं और तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो काम चल जाएगा ना। आई विल बी एबल टू टीच यू, इजंट इट? देखो कि मैं जितना ही ज्यादा अच्छा टीचर हूं, उतना ही कम अच्छे स्टूडेंट को भी मैं पढ़ा पाऊंगा, इजंट इट? है ना? एंड द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। जितना ही ज्यादा अच्छा स्टूडेंट होगा, उतने ही कम अच्छे टीचर से भी काम चला लेगा, इजंट दैट ट्रू? है ना? सो इट्स ऑलवेज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस, कि अगर एक बहुत अच्छा हो गया तो दूसरे की अच्छाई को, कम अच्छाई को कंपेंसेट कर पाता है। देखो, आई वाज ऑलवेज अवेयर कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी। ये थोड़ा सा ऐसे था कि मुझे जब शुरुआत में मैंने जब जॉब ज्वाइन किया, तो 2 दिन के अंदर ही मुझे मेरे एचओडी एक पीएचडी सेमिनार में लेके गए। पीएचडी वाइवा वाज लाइक अ लॉट ऑफ यू आर पीएचडी स्टूडेंट्स हियर ना, तो अंत में होता है ना, यू हैव टू डिफेंड योर थीसिस, द फाइनल डे। So this was the final day of one PhD student, and because I was in the PG department of the university, where all PhD viva had to be conducted, so I was taken to that hall, and he said कि देख लीजिए, आपको जो मैं कह रहा था कि कुछ आप कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे यही होगा। तो I was taken to that hall and I signed on that register that was moved along, and then this person had a topic of PhD which had the word electron, फर्मी गैस, ये सब वर्ड्स उसके टॉपिक में थे। थीसिस में क्या था तो मुझे पता नहीं। वो जो टॉपिक जो बोल रहा था ना, वो अपनी किसी चीज से पढ़ के बोल रहा था, अपना टॉपिक उसमें था। एंड आफ्टर सेइंग दैट टॉपिक, ही रेड समथिंग एल्स फ्रॉम अ पीस ऑफ पेपर. Somebody from amongst the audience asked a question which was about Fermi. Fermi, you know, it's the name of a scientist in physics. And the way he looked at the way the PhD student looked at him was as if the question was asked in Greek and Latin. He did not know what is being talked about. Remember, the question is about a word from the title of his thesis, not even in his general thesis, the title of his thesis. And he was staring at this the teacher who had asked. That was not me. And then the onslaught began. Somebody else, just for fun, asked something else, and somebody asked, अच्छा चलो कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ. And this guy was like, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है. I was like, wow. So the meeting, so then suddenly up somebody from amongst the faculty said that, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए बच्चे को आशीर्वाद दीजिए अब. It was बच्चा as in a PhD candidate. And then everybody started clapping, and somebody announced that you are now a PhD student. Now as in you are a doctor something. His name was said that you are now Dr. this. I was just stunned. And then I went to my office. I was assigned a one-room office. I wrote a letter to the Vice Chancellor. Vice Chancellor is the supreme body, like director in IIT, Vice Chancellor in IIT in a university. I wrote a letter to the Vice Chancellor, forwarded by HOD. I took this letter to the HOD saying that please authorize it, please forward it. And in that letter, I had written that this candidate, this is the name, this is the time of his PhD defense, and it was a totally wrong PhD. This is how it happened. This is the sequence of events that had happened. Now, this is something that nobody expected. Everybody expected that I would just say that ये तो बुरा हुआ, गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था, पढ़ के आना चाहिए था. I wrote a piece of letter
and I was about to. Now everybody in the department who was till now pro Amrendra was sitting around me and saying कि ये आप क्या कर रहे हो, ये मत करो, आप बाकी चीजें आप, अरे आप उसको थोड़ा डांट दो, ये कर दो, लेकिन ये मत करो. I said, मतलब if it has happened on paper, then I should refute it also on paper, and I refuted on paper. And तो मुझे मार डालने की धमकियां मिली, मुझे मेरे पापा को फोन आने लगा. मैं चूंकि वहीं का हूँ तो मेरे पापा के गांव, मतलब हम लोगों के गांव के लोग पापा को फोन करने लगे. उन्होंने फोन करवा लिया. मेरे पापा का फोन पे फोन आता जा रहा था, and I was not receiving any call because I knew what was going to happen. My father would threaten me कि तुम ये करो वरना मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा. You know, all parents are same. फिर I was not taking any calls. घर पे आए तो पापा ने बोला, जो भी बोला, मतलब घर से निकाल देंगे, तुम निकल जाओ या मैं निकल जाता हूँ, सब बातें हुई. I was very sure that what is right, what is wrong. I'll say what it is, whatever may be the consequences. I think this strength comes to me from my yoga and meditation practices. It is immaterial what the consequences may be. I will say what is right. I'll say what is wrong. Consequences do not dictate my actions. I mean, I'll think about everything. Okay, this is beneficial, this is not beneficial. But simply because it is dangerous, I will say implicit lie. See, a lot of people don't lie, but they do implicit lies. Like वहाँ पे सब लोग जो चुप रह गए और बाद में बोलते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, यहाँ तो बहुत गलत प्रथा है, वो मैं नहीं होने दूंगा. तो उस दिन के बाद से मेरे बारे में बहुत सारे लोग अकड़ू है, ये वो सब जो भी है. बट तो मुझे लगता है आकांक्षा, मेरे जो चीजें जागी ना, मुझे भी गुस्सा आने लगा. तो अगर मुझे गुस्सा नहीं आया होता ना, तो मैंने बहुत सारी चीजों को ज्यादा अच्छे से हैंडल किया होता. देखो, मुझे याद है एक बार गांधी जी से पूछा गया था कि आपके अनशन करने से अंग्रेज सरकार को क्या फर्क पड़ेगा, वो लोग क्यों कोई रूल को वापस लेंगे. उन्होंने यही जवाब दिया था उस रिपोर्टर को, अंग्रेज सरकार को फर्क ना पड़े, और क्यों पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, मेरे अनुभव में ये है, तो जरूर मेरे कर्मों में कुछ शुद्धि की जरूरत है. मैं ये अनशन रख के अपने आप में वो शुद्धि ला रहा हूं. जब मेरे अंदर वो शुद्धि आ जाएगी, मुझे ये अनुभव नहीं करना पड़ेगा. ये जो मैं हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा देख रहा हूँ, कुछ ऐसा आया था, कुछ ऐसी बात थी जिसके कारण वो अनशन पे गए थे. मुझे वो रिपोर्टर वाली बातचीत याद. उन्होंने कहा था कि मेरे कर्म में कुछ शुद्धि की जरूरत है, जब मैं अनशन करूंगा तो मेरे में वो शुद्धि आएगी, और मुझे ये चीज नहीं देखना पड़ेगा. मैं अपने में शुद्धि के लिए ये कर रहा हूँ, किसी को डराने के लिए नहीं कर रहा. मुझे लगता है कि कहीं मेरे अनुभवों में वो भी I had purchased that, मतलब I had, कहीं कुछ है जिसमें ये कड़वापन लिखा था, जिसके कारण ये सब हुआ. अदरवाइज मैंने ऐसा देखा है कांक्षा, खुद से ही देखा है और कई और लोगों में देखा है कि चरित्र का बल होता है इतना कि एक बार बोल दो तो लोगों को हिम्मत ही नहीं होती उससे बदल के करने की. देखो, यहाँ पे चीटिंग वाज वेरी रैम्पेंट, बट the last time I cheated, I remember, was in my 8th class. So in 8th class, I remember that I had decided that I will never look at somebody else's answer book and write. And I remember in the 8th class final exam, somebody from the seat in front of me asked something from the person sitting to my right side. And this man responded. This boy responded. And that was a question that I also did not know. So I did not ask. But now the entirety of who I was fighting. I want to write this answer now. Now I know. Even though I did not know the answer myself, but now I have got the answer. Why should I not write
बट आई रिमेम्बर द इन फाइटिंग, अंतर्द्वंद इतना जोर से चला ना कि मैं वो उत्तर भूल गया. जब अच्छा अंत में मैंने डिसाइड क्या किया कि मैं लिखूंगा. Honestly speaking, this is what my decision was, that I will write that answer. But when I started writing, I realized that I don't remember that answer anymore. The infighting was so intense. So in 8th class, this happened. That देखो अभी भगवान ने भुलवा दिया ना मुझे, तो अभी भगवान भी नहीं चाहता था ये करना. So that was the last instance of me trying to get somebody else's answer and getting marks on it. अभी वो कर्म का बल देखो मेरा ऐसा था कि यहाँ पर जब मैंने अपने क्लासरूम में चीटिंग रोकी तो बच्चे बोले कि भोजपुरी में बोले कि कौन हो तुम, तुमको क्यों लग रहा है कि यहाँ पे तुम चीटिंग रोक पाओगे. मतलब this is not how you talk to your teachers, but this is how the conversation happened. And I was not the invigilator. It's just that the exam was happening in my classroom, in my PG department, in my department. It was happening in my space. There are only 4 faculties there. So it was my responsibility and nobody else's. So I walked into that classroom, said, what is this? And it was my subject, the paper that I taught. It was my subject. So somebody said कि पढ़ाई होती ही नहीं है. So somebody else said कि ये सर पढ़ाते हैं. Because I used to take classes, even if one student was there, I'll take my class. Or if nobody is there, I'll write on the blackboard that this class, this is the MPHY CC5, this is the course number, and this is the date. Please call me from my office whenever you come. So this was time-stamped in their head for some students who would sometime occasionally come there. So किसी ने बोला, फिर किसी ने, तो वहां पर ना 15 साल पहले एक फिजिक्स का ही टीचर था, उसको लाठी से, छड़ी से मार के ऑन स्पॉट डेथ कर मार दिया था लड़कों ने, क्योंकि वो चीटिंग रोकने की कोशिश कर रहा था इसी यूनिवर्सिटी में, इसी डिपार्टमेंट में. और तो मुझे जब बोला वो किसी ने कि कौन हो, क्यों लगता है तुमको कि तुम चीटिंग रोक पाओगे, तो आई जस्ट इनोसेंटली लुक्ड एट हिम एंड आई सेड कि मैं हूं तो क्या कुछ भी नहीं, लेकिन मैं चीटिंग तो नहीं करने दूंगा as long as I am standing here. And it happened. The power of your own karma, it's immense. It is immense, I tell you. Nobody could do the cheating. Finally, I was called by the head of department and I was rebuked because everybody knew that everybody will fail. Nobody knew anything. So the whole department will be questioned. The vice chancellor will question the department head. The chief minister will question the vice chancellor. Why everybody in your classroom has failed? Nobody in 50 students has passed. Why? Nobody wants to say that the king is naked. No? You remember that story. That's how it is. So everybody knows the situation, but nobody wanted to say that. But I said, and it happened, it worked out. So when the HOD called me and rebuked me, that what are you doing? Do you think you are going to change the system? I am the in charge here and I'll run the way things are. Who asked you to go in that classroom? I said that there was cheating happening in that classroom. So I went inside that class. This class is inside the department where I'm a faculty. He said whatever he could say, and I think I cried. I maybe two mug of tears came out. I don't remember when I cried previous to that, with that intensity. But then you know what happened? Students from that classroom, all of which are going to fail if they take the exam honestly. Students from that class. So after calling me in the HOD chamber, I was rebuked and I was sent back saying that I'm instructing you not to go back to that classroom. I took instruction that, okay, you have the right to give me instruction you have the right of allocating me to whatever you want. I went back to my office and I cried as much as I could. Students from that class came to my office, queued up. I think it was more than what I could count in one go. This was like 15, 20 students, whatever the number may be. A good chunk. And they said कि सर आप चलो हम लोग के साथ, हम लोग आपके तरीके से ये एग्जाम देंगे. Remember, these were students, none of whom would pass if they
take the exam the way I was saying. But they were saying कि सर हम लोग को जो भी करना पड़े हम लोग आपके तरीके से ही करेंगे. आप बात ठीक कह रहे थे कि पहले हम लोग आदमी तो बन जाएं, फिजिसिस्ट बाद में बन लेंगे. I was talking to them in trying to convince them. तो मेरा जो पियोन था वो भी रोने लगा जिस तरह से I was treated. And the department understood something. What I'm trying to say that the power of your karma is so strong that देखो वो बच्चे तैयार हो गए ईमानदारी से एग्जाम देने के लिए. देखो वो बच्चे जो उनमें जिनमें से कुछ लोग तो मुझे पीटना चाहते थे शायद कि क्यों ये चीटिंग करने से रोक रहा है लोगों को. They somehow lost their strength. The desire to become violent went away somehow. If we bring that intense purity in us, things will change. I tell you, things will change. देखो यही गांधी था. यहाँ पे अनशन करते थे वो और वहां पे सीनेट की बैठक बैठती थी, है ना, संडे को, which is a holy day for them, like in Britain. फिर भी वो मीटिंग बैठ जाती थी कि अब ये गांधी फिर से अनशन पे चला गया, अब क्या करें. The world opinion will change against us. This used to be the topic of their meeting. We have to do something. I've read English authors who used to tell that. क्या होता था, फर्क क्या है? Power of your karma. So despite all the challenges, I think I'm able to stand. अभी recently किसी ने मुझे पिटवाने के लिए भी भेजा, and the intention was not even to beat me up. The intention was just to scare me off. Because he was constantly throwing abusive words on me. माँ बहन की गालियां जो कहते हैं ना, वो देते जा रहा था और मैं उससे मुस्कुरा के बोल रहा था, लेकिन आपको जिस काम के लिए आए हैं वो तो बताइए. मैं आप कह के बात कर रहा था और मैं बोल रहा था जिस काम के लिए आए हैं वो बताइए. ये सब गुस्से वाली बात भी सुन लेंगे आपकी, आप जिस काम के लिए आए हैं वो बताइए. So he was probably frustrated कि इस पे तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा, इसको गालियों से तो इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा. So he then decided to use hands. But उसमें भी देखो, eventually your strength makes a difference. Not the strength of what you can do. When you are able to touch the infinity inside through yoga and meditation, there's an immense strength that you get. मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ ना, but a change. तो भैया अगला सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है कि आप इतना ज़्यादा चैलेंजेस जैसे हम सब आप फेस कर रहे हैं, तो हम सब में से कोई अगर सेम पाथ पे जाना चाहे जिसके सिमिलर गोल्स हैं, टू स्टैंड अगेंस्ट द रॉन्ग एंड टू स्टैंड फॉर द राइट, आप हम सबको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? Listen to your heart. पता है, in this युग कृष्ण आपके सामने बांसुरी बजाते हुए प्रकट नहीं होंगे, वो आपके हृदय से ही बात करते हैं. You will get a inner call that ये करते हैं, यही करते हैं. पता है, किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है. भगवान के लिए कितना आसान था ना, एक इंसान को बनाया, अभिषेक सवर्णा को बनाया और फोटोकॉपी मशीन ऑन करते और 1 करोड़ लोग ऐसे. आसान था ना, है ना. एक महात्मा गांधी बनाए और फोटोकॉपी मशीन में लगा देते, इतने लोग बना दिए. भगवान ने कितनी मेहनत करी ना, अलग अलग आंख, नाक, मुंह, वृत्तियां, सबको बनाने में. तो let us all be who we really are. Can we stop this constant yearning inside us, the penchant to become somebody, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो. We don't need to become anybody. Listen to your heart, and I tell you, that is the direction Krishna has set for you. पता है, हम लोगों के हाथ में कुछ करना है नहीं. मुझे जो समझ में आता है, the way I see my life,
कि मेरे औकात में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। मुझे मेरे पापा जब बोलते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, आई टोटली टेक इट। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ेगा। देखो, एट बेस्ट आई कैन बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैं बांसुरी बन गया, तो बांसुरी में फूंक मार के बजाना ये कृष्ण का ही काम है, ये मेरा तुम्हारा काम है। उसमें धुन अच्छी आई खराब आई, ये ऊपर वाले का ही काम है, प्रकृति की शक्ति का ही काम है। वो तुम नहीं करते, मैं नहीं करता। तो अगर तुम्हें इस्तेमाल करना है उसको उस तरह से, तो वो करेगा। नहीं करना है, वो भी नहीं करेगा। एंड दैट इज ऑल्सो ओके। मतलब इट वाज, मेरे अंदर इस बात की हड़बड़ाहट नहीं है कि मैं बदल ही दूं सब कुछ। मेरे अंदर बस इस बात की हड़बड़ाहट है कि क्या मैं अपना बेस्ट कर पा रहा हूं। Is there anything that I'm missing out on what I can do? I just need to ensure that. The moment I'm able to ensure that, I relax कि ठीक है, और कुछ है क्या? नहीं है तो ठीक है। I keep thinking on those lines. तो अभी तुम ये सोचो, तो coming back straight to the pin of your question, कि वो क्या कर सकते हो तुम, और ये सबके लिए अलग अलग होगा। वो तुम क्या कर सकते हो जिससे तुम अपने हृदय की आवाज सुन सको। Do you realize that it is not a one-step process? It's a habit that you nurture inside. कि मैं अपने आप को दबाऊं नहीं, सुनो। उसमें थोड़ी गलतियां भी करोगे, करो, लेकिन सुनो अपने। पता है, बर्तन भी धो करके somebody can reach the peak of what a human being is. The idea given by our culture, our land is just this, कि तुम, when वो कृष्ण कहते हैं ना कि when the dance and the dancer becomes one, when they do not remain two things. When the dance and dancer becomes one, that's when yoga happens. जब वो हो जाए तो तुम अपनी बात सुनने लगोगे, और विश्वास करो कि जब तुम अपनी बात सुनने लगोगे ना, तो तुम अपनी जगह पे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जाओगे, कोई अपनी जगह पे बहुत अच्छा रिसर्चर हो जाएगा, कोई अपनी जगह पे बहुत अच्छा लेबर हो जाएगा, कोई अपनी जगह पे बहुत अच्छा प्रधानमंत्री हो जाएगा। And this is what we need. Everybody doing their part properly. पता है, जब ये बात बार बार हो रही थी ना, केला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो मतलब हर किसी से जब ये सुनते थे, मेरे कलीग्स भी, हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं नारायण जी आप, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैंने एक चीज ये वो कर ही नहीं सकते। तुम एक अलग स्टैंडर्ड सेट कर देते हो just by being who you are, not by giving any sermons to anyone, just by being who you are। उनको अब साइकोलॉजिकल प्रेशर फील होने लग जाता है, हाउ कैन आई नॉट टेक क्लासेस। अभी वो एक सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें अगर मैं सच में ग्रेड कर रहा हूँ तो किसी को ज्यादा किसी को कम आ रहा है ना। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है, नाम सुंदर है तो ठीक है 75 दे दिया, ये नाम छोटा सा है, ऊपर में हैंडराइटिंग भी पहले पन्ने पे खराब दिख रही है तो चलो 65 दे दिया, ऐसे। whereas I give even 99 ना, if somebody has written, जो मैंने पढ़ाया है उसमें से जिसने जो लिखा है, and if somebody is not doing it well, तो मैंने उसको 50 भी दिया, मतलब कम भी दिया, तो फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। Then the other teachers also start thinking, how can I not check my copies now? I have to now check. Pressure बना। देखो, एक बात पक्का जानना, there are only two types of people. One who get affected, others, the second, who affect others. Check where you stand. One who get affected, and the second who affects others.
यही परिस्थितियां चाहे अच्छी या बुरी सबके साथ रही, किसी के लिए अलग नहीं था कुछ, किसी को थाली में सजा के कुछ नहीं मिला। बट देखो, हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग will never become something that can affect others, है ना? What affects others is love, enthusiasm, it's devotion, it's मजा आ रहा है तुम्हें काम करने में, तो तुम अपने काम करने में जो मजा आ रहा है ना, मुझे याद है मेरा गार्ड बाहर से ताला लगा करके चला जाता था, और हम लोग को आईआईटी में कैसे आदत हो जाती है ना देर देर तक काम करने की। तो मैं अपने चेंबर में काम कर रहा हूँ, अपना छोटा सा ऑफिस जो मिला है उसमें मैं मेरा पूरा फिजिक्स का लैब बंद था, इट वाज लॉक्ड फॉर इयर्स टुगेदर। सो व्हेन आई केम आई गॉट इट ओपन एंड मैं खुद से उसकी अलमारी से आता था, उसको उसका एक एक एक्सपेरिमेंट बनाता था। तो गार्ड बाहर ताला लगा के बंद करके चला जाता था। कभी वो बाद में आता था कि अरे आपके सर आप अभी तक हैं यहाँ पे, बट वो बात धीरे धीरे आग की तरफ फैलने लगी, धीरे धीरे, क्योंकि he had no motive to share it, लेकिन आग की तरह, क्योंकि वो अब irreversible था, अब वो बात फैलती गई। कहीं से कोई, अरे मैंने सुना है कोई एक आदमी है जो कि 6-7 बजे तक भी काम करता है अपने ऑफिस में, एक्सपेरिमेंट्स मैंने सुना है कि फिजिक्स के खड़े हो गए हैं क्या वापस। ये बात, तुम are you with me? When you work with intensity ना, then divinity manifests from you, है ना? तुम अपने आप को जब पूरी तरह छोड़ दोगे ना, तो प्रकृति तुम्हें इस्तेमाल करती है। If you are willing to be used by Mother Nature will use you. So तुम्हें आकांक्षा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला ना कि how to be that, just listening to yourself. So you do things that makes you a better listener to yourself. हो सकता है तुमको कविता सुन करके वैसा लगता हो, तो थोड़ा सा समय अपनी कविता को दो। अगर तुम्हें नेचर वॉक करके अच्छा लगता है तो नेचर वॉक थोड़ा करो। तुम्हें हो सकता है स्विमिंग करके लगता है कि बहुत मजा आ गया, तो थोड़ा सा समय स्विमिंग को दो। गिव टाइम टू दैट व्हिच टर्न्स यू इनवर्ड। थोड़ा अंदर में तुम्हारे एक इन्फिनिटी का बूंद है, उसको टच करके देखो, गजब का पावर है। So now we'll be taking question and answers. If I think अपूर्वा ने कोई क्वेश्चन पूछा था, निशांत है वो यहाँ पे भी? Hello. हाँ, हाय अपूर्वा. Hi. Thank you. First of all, I want to thank for this wonderful interaction. मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने जो भी बोला कि आप मेडिटेट करो या ऐसे अपने आप को कंट्रोल करो, बट कभी-कभी मुझे लगता है चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं। आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जब लोग आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं और आपका मन करता है कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, दो सुना दिया जाए। तो वो एक्सट्रीम मोमेंट पे आपने खुद को कैसे कंट्रोल किया कि नहीं, मुझे यहाँ शांत रहना है और अपनी चीजों को पीसफुली प्रोसीड करना है? मुझे शांत रहना है ऐसा मैंने नहीं सोचा। देखो हम सब लोग ना एक, मतलब जस्ट यूजिंग चालू भाषा, हम सब लोग लालची होते हैं ना, है ना, अपने बेनिफिट को की भाषा समझते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि मैं यहाँ पर किस लिए हूँ। मैं साधु महात्माओं के बीच में एक व्यवस्था स्थापित करने आया हूँ क्या? नहीं, है ना। मुझे ये बात पता थी कि ये जो लोग, जो व्यक्ति शोर कर रहा है और इस तरह के बंधु बांधव जो हैं, इन्हीं लोगों के लिए मैं आया। तो मैं साधुओं के बीच में नहीं आया, और इन्हीं के बच्चों को फायदा होगा जब ये व्यवस्था बन जाएगी, तो आज से 20-25 साल बाद। तो मेरे ही फायदे की बात है, मैं अपना ही काम कर रहा हूं, मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूं। द प्रॉब्लम कम्स, यू स्टार्ट फीलिंग हैवी एंड टायर्ड when you start doing things for the other. Stop doing anything for the other. Become selfish. Listen to your own self.
just do things for yourself. So I just did what I thought would be beneficial. मुझे पता था कि ये अभी गुस्सा करके, मतलब I did not know the intention कि उसको किसी ने भेजा था ये करने के लिए. मुझे बस ये लगा कि इसका कुछ का नुकसान होगा. देखो, I am at the position where किसी को 5 मार्क्स आ रहे हैं उसको मैं 50 बना सकता हूँ, बिकॉज मैं वो गेट कीपर हूँ उसका. और तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर बेटी की शादी नहीं होगी, बस थोड़ा सा पास कर दीजिए ना. बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया बस अब हमको पढ़ना वढ़ना है नहीं, बस ये इतना नंबर थोड़ा 9 आया है उसके सामने 3 लगा दीजिए, 39 हो जाएगा तो हम पास कर जाएंगे भैया, और पास कर जाएंगे तो हमको फिर और करना नहीं है कुछ. अभी बहुत सारे लोग वो सब बात का गुस्सा रखते हैं, बिकॉज आई डोंट डू, आई जस्ट स्टे विथ माई लाइफ कि जो करना है वही करना. सही चीज है तो है. अभी मुझे लगा कि वो वैसा वाला गुस्सा है, तो इवन दो ही वाज throwing all those abuse, I was staying to my point कि इसकी बात क्या है. वो जैसे ही, अच्छा देखो, हर इंसान को अंतर में आत्मबोध होता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ. तो अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग जब कमजोर बात कह रहे होते हैं ना तो खुद ही धीमे हो जाते हैं. तो अगर वो व्यक्ति कोई ऐसी बात का निवेदन लेकर आया था जो कि गलत था तो खुद ही वो धीमा हो गया होता. या अगर कोई वाजिब बात लेकर आया था तो आई वुड हैव अकोमोडेटेड दैट. देखो, हमेशा इस बात को जानो कि अगर एक गुस्सैल आदमी को समझाने किसको होगी पता है? उसे खुद. दूसरे गुस्सैल आदमी को, है ना. एक कमरे में हम 5 लोग बैठे हैं, अगर मैं गुस्सैल हूं और तुम गुस्सैल हो, ठीक है, मेरा सबसे ज्यादा झगड़ा किससे होगा बताओ? तुम ही से होगा ना, है कि नहीं? देखो, अगर मेरे अंदर कुछ भी हो ना, कोई भी एक वृत्ति ले लेते हैं, जैसे देखो ना, जो लोग बोलते चलते हैं ना कि लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वैसे नहीं पहनने, ये कौन लोग हैं? जिनका दिमाग बस वहीं पर है, जिनका दिमाग कपड़े पर वहीं पर है. ये वो लोग नहीं है जो साधु हैं, भले कपड़े का रंग इनका जो भी हो. बात समझ में आ रही है? जिसकी हमें प्रॉब्लम उसी से होता है जहां पे मेरा ध्यान, जो मेरी समस्या है. तो एक व्यक्ति के गुस्से से समस्या मुझे कब होगी? जब मैं खुद गुस्सैल हूं. See, human beings are only a interactive system. तुम adiabatic system नहीं है, तुम एकदम कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में. तो फर्क यही पड़ता है कि उसने अगर थोड़ा बारूद दिया और चिंगारी लगाई तो तुम्हारे अंदर का बारूद जाता है. इफ यू डू नॉट हैव बारूद, तुम्हें विश्वास करो कुछ नहीं होगा. तो ये सब जो बातें हैं ना कि कैसे कंट्रोल करें, मत करो कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल कर नहीं पाओ. वो झूठ है जो लोग दूसरे को बताते हैं. तुम अपने अंदर के बारूद को साफ करो ना, प्रेम बनाओ. तुम्हारे अंदर जैसे ही लव और इंथुजियाज्म आएगा ना, तो तुम देखोगे कि जिसको छुओगे ना उसके अंदर आग लग जाएगी प्यार की. उसको लगेगा कि क्या करें हम, ये भी करें वो भी करें. डन. थैंक यू. अतिका. हाँ. नेक्स्ट सार्थक आप जी. थैंक यू. अमरेन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मेरा सिर्फ अभी तो यही सवाल आ रहा है बाबा दिमाग में कि एक होता है अपने कहा दिल के सुनना और डिसीजन ले लेना, और एक होता है उसके साथ रहना, मतलब परसिवरेंस. हमने स्थितियां कहाँ लगे लोगों के लिए. तो उस टाइम आपने क्या किया? क्योंकि अगर आप उनसे एक बार के लिए सोचें, नॉर्मल व्यक्ति, आपके पापा से लड़ाई हो रही है, आपके घर पे कलेश हो रहा है, आप बाहर के जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं, दोस्त सारे बाहर हैं, इनफैक्ट बहुत कम लोग होंगे जो वहाँ पे आपके पहचान के आपके ऐसे होंगे, कहना चाहिए, जिनसे आप अपने फीलिंग्स शेयर कर पाएं. तो उसके बाद ऐसा कैसे नहीं हुआ कि आप बैकअप हो गए या पीछे चले गए वापस, या आपका मन नहीं हुआ करने का? ये जानना मुझे. थैंक्स फॉर द क्वेश्चन सार्थक. ये बात कई बार मुझसे मेरे दोस्तों ने पूछी है. देखो, जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था ना, तब
तब शुरुआत के 6 महीने तक मुझे सैलरी नहीं मिली थी. दैट्स हाउ इट हैपेंस हियर. इसके पहले IIT बॉम्बे में हम लोगों को रेगुलर सैलरी मिलती थी एज अ पोस्ट डॉक्टरल फेलो. तो जब मुझे यहाँ सैलरी नहीं मिली, और आई वाज नेवर अ पर्सन हु यूज्ड टू सेव. मुझे जितने पैसे आते थे, मुझे यहाँ डोनेट करना है, वहाँ अपने लिए खर्च करना है, या मम्मी के लिए कुछ खरीदना है. तो आई नेवर हैड अ लैविश लाइफ, बट इट वाज ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्पेंट, कि किसी दोस्त ने पैसे ही मांगे हो, कुल मिला के खर्च होता गया. मुझे याद है उस समय मेरे दोस्तों ने आपस में एक पूल ऑफ मनी क्रिएट किया और ये कहा कि तू अपना पूरा लाइफ दे रहा है, तो हम लोग पैसे तो दे ही सकते हैं ना. सो दे सेड कि तेरा इंस्टीट्यूट पैसे दे या ना दे, हम लोग तुम्हारा सैलरी जितना बनता है उतना देंगे, तो तुम बस बेफिक्र रहो, और जब तुम्हारा वो सैलरी आएगा एक बार में, तो यू कैन रिटर्न अस इफ यू वांट. रियलाइज दैट आई kept getting support in different ways at different time. I was never supportless. I should first clarify that. फिर मैं और भी बोलूंगा, लेकिन फर्स्ट मैं ये क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ कि मैं सपोर्टलेस था, ऐसा नहीं. देखो, तुमने देखा है कि कोई आदमी में दीवानापन हो गया हो, तो उसको कोई भी बात बोलो तो वो कहेगा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे वही चाहिए. सुना है तुमने? देखो, जब किसी को प्यार हो जाता है ना, तो तुम पापा मम्मी अक्सर देखते हैं, मतलब a lot of you have probably not gone through that phase of life जहाँ पे तुम बोल रहे हो कि पापा मुझे उसी लड़की से शादी करनी है, मम्मी मुझे उसी से शादी करनी है, और पापा बोल रहे हैं नहीं बेटा देखो तुम चाहो तो ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, लेकिन बस उससे शादी नहीं कर. वो शादी वाली बात छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारी कास्ट की नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी कारण, जो भी बात है. बट उसमें तुमने देखा होता, अगर वैसी सिचुएशन को फेस किए होते, कि बातें जो भी करें वो तुम सुनोगे, उसको लोगे नहीं लोगे, अंत में गोल घूम के वापस वहीं आओगे, लेकिन पापा शादी उसी से कर दे, है ना. जब बात दिल की आ जाती है ना, तो बाकी सब चीजें बदल हो जाती हैं, बिकॉज इट डज नॉट मैटर. मेरे लिए बात दिल की थी. और देखो, यहाँ एक बात है जो कि शायद मैं तुम सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा. थैंक्स फॉर शेयरिंग. तुम किसी और के लिए करोगे ना, किसी और के लिए, कि मैं शिक्षा सोपान के बच्चों के लिए वो काम कर रहा हूं, तो तुम्हें थोड़ा गर्व लगेगा, और लेकिन थकान भी लगेगी. समझ रहे हो ना? तुम यू विल फील प्राउड कि मैंने दूसरों की मदद की, और बाद में तुम्हें मन में थकान भी आएगी. लेकिन जब तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो का मतलब देखो थोड़ा ध्यान से. मेरे सामने कोई आदमी भूखे है, हाँ, जस्ट टेक दिस एग्जांपल वेरी स्लोली, बी विथ मी, वॉक विथ मी. हाँ, कोई व्यक्ति मेरे सामने भूखा है, एकदम तड़प रहा है भूख से, मेरे पास भोजन है, हाँ, मैं खा रहा था, मुझे सडनली उस पर ध्यान गया, मुझे मन में आया कि मैं उसको खाना दे दूं क्या. बी विथ मी, हाँ, वॉक विथ मी. मुझे मन में आया मैं उसको खाना दे दूं क्या. फिर मुझे लगा मेरे पास भी तो लेकिन एक ही रोटी है ना, मतलब मेरे पास भी जस्ट उतना ही है जितने से मेरा पेट भरेगा. फिर मुझे लगता है कि लेकिन फिर भी वो तो बहुत भूखा है ना, उसके पास तो आधी रोटी भी नहीं है. और ये सारी बातचीत चल रही है, हमारे मन में सारा अंतर्द्वंद चल रहा है. एट द एंड यू डिसाइड टू गिव हाफ ऑफ योर रोटी टू हिम. ठीक है. नाउ नोटिस केयरफुली, you gave the roti to that person for whom? If you honestly analyze the situation, you will realize that you did it for yourself. You did it for the peace of your own mind, because your mind was not letting you eat that food, isn't it? Realize this. मतलब तुम्हारी आंखें ना होती, तुमने देखा नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, you would go on eating, isn't it? Even though the person is hungry, just as yeah, then the whole life I will remember that person if I have not given that. मुझे जिंदगी भर याद रहता कि मैंने नहीं दिया वो. ये बात सही ला रहे हो साथ. So it is for your own good, it is for yourself that you give that piece of bread, you share that thing. तो अगर तुम ईमानदारी से देखो ना अपने जीवन को, तो
वो सब कुछ जो कहते हैं ना कि अच्छे काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, वास्तव में अपने लिए कर रहे हैं सब लोग। मैं तो ईमानदारी से तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने अब तक जीवन में कुछ कर रहा हूँ, मतलब मेरे मन में ये गिल्ट नहीं आएगा कि मैंने तो तुम्हें इतना कुछ दिया और तुम मुझे वापस बदले में थप्पड़ दे रहे हो, ये मैं कभी नहीं बोलूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाई आई गेव। I was not giving it to him. I was giving it to my own desires. I was feeding my own drive. So when you start feeding your own drive, then this thing will not happen. ये जो टायर्डनेस की बात कर रहे हो ना, कि मन इरिटेट हो जाता है कि बहुत हो गया यार, चल बाहर चलते हैं। मुझे याद है जब मैं IIT बॉम्बे में गेट के बाहर जैसे ही निकलो, आप लोगों में से जो IIT गए होंगे वो जानते होंगे कि IIT बॉम्बे के गेट के जस्ट बाहर 5 लाल बत्तियां हैं। इट्स वेरी फनी, मतलब नो बुक ऑफ ट्रैफिक विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस। 5 लाल बत्तियां हैं और 5 में से 3 एक साथ हरी होती हैं, और उसमें से एक साइड IIT बॉम्बे के साइड का है। तो यहाँ से तो ऑर्गेनाइज तरीके से गाड़ियां जाती हैं और आती हैं, लेकिन बाकी जो उधर 4 तरफ से हैं, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि जो 2 बत्तियां एक साथ ऑन हुई हैं, इसमें से किसको पहले जाना है। सो एवरीबडी जस्ट ब्रेक्स इन एट द सेम टाइम, और सब कोई पो 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 करके किसी तरह दाएं बाएं करके ऐसे इंडियन तरीके से मैनेज करके घुस जाते हैं उसमें। Once I walked up to the traffic man who was standing there and said कि भैया इसका तरीका क्या है, मतलब what is the right way of doing it। हो सकता है मैं ठीक से समझ नहीं रहा। तो उसने बोला कि राइट वे क्या है भैया, ऐसे जैसे सब लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा दाहिने बाएं करके चले जाना। I understood that this is the state of affairs here, that the entire order is unorganized। मतलब this traffic man does not know how who should come first। वो ये दो, मैं उससे बेसिकली पूछ ही रहा था कि 3 हरी बत्तियों को एक साथ हरी क्यों करते हो, वो क्या मतलब है, क्योंकि everybody comes to the junction at the same time। And seeing that, I used to often remember वर्जीनिया का ट्रैफिक। वर्जीनिया का ट्रैफिक जिसमें आप अगर फुटपाथ से उठ के अपना पैर सड़क पे डाल दिए, तो वो जो दूर से कार वाला आ रहा है ना, वो ब्रेक लगा देता था कि कहीं ये सड़क पे ना आ जाए बंदा। तो एकदम उसका अप्रिसिएशन आता था, और उन मोमेंट्स को कभी याद करते हैं, वो होता है, लेकिन ये नहीं आता है कि वहीं चले जाएं, वो अच्छा था क्या। दिस कंपैरिजन विल नॉट कम। कंपैरिजन कहाँ आता है, देखो मेरे और तेरे बीच में कंपैरिजन आता है, मेरे और मेरे बीच में कंपैरिजन कभी नहीं आता। देख रहे हो ना, मेरा ये कान सुंदर है और मेरा ये कान थोड़ा खराब है, ऐसा करके अगर हो भी ना, तो तुम कभी ये कंपेयर नहीं करते हो कि मेरा ये वाला कान रख लेते हैं, ये वाला कान काट के हटा देते हैं। Comparison comes only, the choice to reject comes only when you're talking about the other। दूसरे के लिए बात करते है ना सार्थक। बिल्कुल हमारे यहाँ के जो शंकराचार्य थे, एक बार उन्होंने कहा था कि हमारे धर्म का अगर एक निचोड़ बोलना है, तो वो होगा एको हम द्वितीयो नास्ति, कि एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं, there is no other। खैर मैं इस तरह से बोल रहा हूँ बिकॉज माई ड्राइव हैज कम फ्रॉम द योगिक पैथ इन अ लार्ज वे, और ये भी मेरे साथ IIT के दिनों में ही हुआ। IIT कानपुर में आई रिमेम्बर I failed a subject, and that's when somebody told me कि यार ये योगा का कोर्स कर लो तो, and I was like छोड़ो योगा का कोर्स तो, and the fees was like huge, 1,500 rupees, and I was like 1,500 रुपए मेरे पॉकेट में होंगे तो वैसे ही मैं उसकी गर्मी से मैं ठीक हो जाऊंगा, बट वो तो डूबते को तिनके का सहारा होता है ना। तो मुझे I was going through a lot that time, so eventually I decided to do it, and मैं योग में फिर स्थिर हो गया। वो स्थिरता जो मेरे अंदर आई ना, तो मैं पिलर टू पोस्ट होता है ना, दौड़ भाग करना बंद हुआ। मैं एक्चुअली अपनी तरफ दौड़ पाया, मैं वो करना शुरू कर पाया जो मेरे करने का सच में मन कर रहा था। और विश्वास करो, ये हम लोग जिंदगी भर किसी की तरफ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर बस अपनी तरफ बनने लगे ना, तो बहुत मस्ती में हम भी जिएंगे और दुनिया भी बहुत एंजॉय करेगी हम लोगों को। क्या दिस वाज ऑफ द क्वेश्चन। Sarthak, did I manage to answer your question? So good, that's very good. Thank you.
Next, we have 3 more people. Questions जिनके हैं. So, अभिषेक, आप पहले पूछ लीजिए. हाँ, नमस्ते भैया. भैया ये पूछ रहा था कि ये जो आपने शुरुआत में बोला कि आप खुद पे काम करो एंड इट इज सॉर्ट ऑफ कंटेजियस, तो मतलब दूसरा भी फिर आपके साथ मिल ही जाता है, तो आपको किसी को सही करने की जरूरत नहीं है. तो समथिंग आई रिमेम्बर कलाम जी ने भी ये ब्रांड बिल्डिंग की बात की थी कि आप अपना ब्रांड वैसा बिल्ड करो, तो वैसे ही लोग फिर आपको अप्रोच करेंगे. तो एक एक ये पहलू हो जाता है, और दूसरा होता है कि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या बहुत लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो आपको लगता है कि वो जो आपने बोला कि लोगों को साथ लेकर के चलना, मैन मैनेजमेंट, तो इन दोनों के बीच में मतलब टकरार होती है क्या? मतलब मेरे साथ तो होती है, मुझे लगता है कि यार थोड़ा मतलब सबको ले करके चलते हैं, क्या हुआ देख लेंगे, वो काम नहीं कर रहा है छोड़ो उसको. फिर कभी कभी लगता है कि नहीं, आई नीड टू पुट माई फुट हियर, एक स्टैंड लेना है मुझे. तो ये मेरा द्वंद्व है या फिर मतलब बीइंग प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल, मतलब लोग तो काफी कुछ बोलने लगते हैं इस व्यवहार को, तो आपका इस पे क्या बोलना है? Thanks for asking these questions, Abhishek. पता है, human beings, in the language of yoga, human beings are the teachers whose energy can go from where you are to infinity. Infinity को 16 गुणों में कहते हैं. ये बात अभिषेक अगर समझ पाए हम लोग, जो भी मैनेजर्स हैं, कि everything should be seen in the context of what? Context of who this person is. सोचो, एक भिखारी आके 10 रुपए का तुम्हें दान देता है, that's probably bigger than me giving you 10,000 rupees, है ना? या something of that sort. Context, ये बात तो पैसे में समझ में आ गई आसानी से. अब जो तुम बोल रहे थे उसमें आते हैं. अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो 5 लोग हैं मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, 10 लोग जो काम कर रहे हैं, उनमें से इस व्यक्ति की क्षमता इस प्रकार की है कि वो, अच्छा, क्षमता का मतलब सिर्फ द एबिलिटी टू डू नहीं है. कोई एक चीज को, उसका भी कंटेक्स्ट है कि वो मन उसका स्थिर होता है तो ये काम कर पाता है. तो इस व्यक्ति की क्षमता इन सब काम को लेकर के इतनी है. सो उसका इन्फिनिटी तुम जानते हो फिर उसे, तो उसकी इन्फिनिटी के कंटेक्स्ट में उसको देखो, और अगर लगता है कि उसने पर्याप्त किया, इवन इफ इट इज लेसर देन समबडी एल्स, ही नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड द सेम अमाउंट. जैसे कैसे भिखारी के 10 रुपए को तुम मेरे 10,000 के बराबर प्रशंसा दोगे, वैसे ही अगर कोई व्यक्ति बहुत कम भी काम किया किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन the scale of possibilities associated with him में वो अच्छा है, वो रीजनेबल है, तो उसको एक्नॉलेज और अप्रिशिएट उसी तरीके से करना हो. अभी जब हम कहते हैं कि उसकी स्केल ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है, तो उस स्केल में ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि उसके अंदर मोटिवेशन कितना है. इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोटिवेट हिम, है ना? सो वो मे बी मेरा शॉर्टकमिंग भी था. आई वॉज नॉट एबल टू मोटिवेट हिम, दैट्स फाइन. ये हर चीज को मैं ऐसे, जब मैं ये थोड़ा आध्यात्मिक तरीका हो सकता है देखने का, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज को मैं बस जमीन खड़ा कर दूं. मैं, मेरा भौतिक इंसान का बस इतना काम है, बाकी प्रकृति माँ जैसे इस्तेमाल करना चाहे, वो चाहे कि इस प्रकार से एक हवा चले, वो चाहे कि उस तरफ की एक क्रांति आए, वो जैसे मन चाहे उसका वो करे. तो मैंने सबको ध्यान रखा क्या पर्याप्त? कैन was I able to take care of everyone as an individual? मैं हो सकता है सेना नायक हूं, लेकिन मैं अपने प्रत्येक सैनिक का क्या ध्यान रख पा रहा हूं, एक व्यक्ति का. रिमेंबर दैट ह्यूमन बीइंग्स विल कनेक्ट टू ह्यूमन बीइंग्स ओनली, not to ideas. Those who connect to ideas, you don't need to then worry about them. You don't need to count how much they did, and you don't need to appreciate them.
probably not, if they are really connected to an idea. But those who are working in a team, probably because they are feeling connected with you, you check on yourself. Was I able to give everything that I could have as a human being to this person? And that will then ensure that he gives his best. मैंने देखा है कि कई लोग जो अपना बेस्ट नहीं दे रहे थे एक ग्रुप में काम करते हुए, वो लेटर ऑन किसी का लेटेंसी ज्यादा होता है, तो 2 साल बाद सडनली कुछ गजब का काम कर गया. देखो जब IIT बॉम्बे में था, there was a club founded named Yogastra. We taught yoga and meditation through that. वहां पर कुछ लोग थे जो वहां पे बस रहते थे, कुछ मतलब they were part of all these meetings that I organized that time. But वो कुछ ऐसा कई बार मुझे लगा कि कर क्यों नहीं रहे कुछ. But now when I hear the news, I see them doing a lot. जब अब मैं वहां मैं हूं भी नहीं. So you never know किसका latent energy कब पूरा हो, है ना. तो हम लोग अपने आप को ना बस इतना ही याद रखें कि हमारा काम दिया जलाना है. वो कितना जोर से जलता है, वो उसकी धधक ईश्वर तय करे, प्रकृति तय करे. We are nobody to count it. ये भैया मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था. मेरे दोस्त ने अभी इंटरव्यू दिया एक NIT का, तो वहाँ पे जब उसका इंटरव्यू चल रहा था तो ही वाज टोल्ड कि देखिए आप लोग वहाँ से आ रहे हैं तो आपके कुछ आइडियल्स होंगे, ये होंगे, लेकिन यहाँ पे हम मिलजुल के रहते हैं, तो आप थोड़ा कैजुअली रहता. तो फिर उस दोस्त ने मुझसे पूछा कि ऐसे सवाल इंटरव्यूज में क्या बोले जाते हैं, तो ही रिमेन्ड साइलेंट. वो तो बस सुन लिया, बट आई वाज लाइक आखिर पैनल इंटेंट क्या कर रही है, व्हाट इज. मे बी मैं वो सोचता हूँ कि मे बी IITs में हम लोग को वो एनवायरनमेंट मिलता है वेयर वी आर, मतलब वो फ्रिक्शन नहीं होता है. देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस एंड वी आर एबल टू मतलब अपने प्रिंसिपल्स और वो सब हम देख पाते हैं. बट व्हेन वी गो समवेयर जहाँ पे उतना मानते नहीं है उसे, या बहुत कैजुअल एटीट्यूड है, तो फिर आई गेस इट इज लाइक अ टेस्टिंग टाइम फॉर अस, जैसे आपके लिए भी हुआ. आप अभी वहाँ गए तो मे बी IIT पवई में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप जब वहाँ काम कर रहे होंगे. तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहा था कि ऐसा भी हो सकता था कि मतलब कुछ लोगों को साथ में ले करके थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके, लेकिन वही है कि कॉम्प्रोमाइज करना सही है कि नहीं, एब्रप्ट चेंज इज गुड और नॉट. तो ये था. एब्रप्ट चेंजेस मैं कर भी नहीं रहा हूँ. उसका तरीका मेरा यही था कि मैं किसी और की क्लासरूम में मतलब जो टीचर क्लास नहीं लेते हैं, फॉर इंस्टेंस, मैं उनके क्लास में चीटिंग रोकने की कोशिश नहीं करता था. मैं अपने क्लास में जिसमें मुझे पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं चीटिंग रोकने की कोशिश करता. उसमें मैं सैम्पल एग्जाम क्वेश्चन पेपर देता था, जिसमें अगर कोई आके देखना चाहे तो उसको मोस्ट ऑफ द आंसर्स ऑलरेडी बताने को मैं तैयार होता था कि ये सैम्पल क्वेश्चन, ये सैम्पल आंसर्स, कम रेडी रीड इट, है ना. तो एब्रप्ट ये नहीं है. मैं सिर्फ वहां पे चेंज ला रहा हूँ जहां पे मैं खुद खड़ा हूँ, जहां पे मुझे प्रकृति ने खड़ा कर दिया, तू यहाँ जा. जब तक मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में था, फिजिक्स के बारे में करता था. अब मुझे कंप्यूटर सेंटर का इंचार्ज बना दिया गया अपने जगह पे, तो पूरी यूनिवर्सिटी के मार्क्स वहां प्रभावित हो रहे हैं. लेकिन जहां मुझे रिटन ऑर्डर करके रखा गया, मैं सिर्फ वहीं का काम कर रहा हूँ. तो हेंस इट इज इन सम सेंस नॉट एब्रप्ट. आई एम नॉट क्लीनिंग समबडी एल्सेस हाउस. आई एम नॉट आस्किंग समबडी एल्स टू बिकम like something. शुक्रिया भाई, गॉट इट. नेक्स्ट सौरभ कुमार झा, यू हैव अ क्वेश्चन. आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट नहीं हो रहे हैं वो, तब तक हम उमेश प्रसाद का क्वेश्चन ले सकते हैं. प्लीज अनम्यूट हिम निशांत. काफी टाइम हो गया, मतलब मुझे लगता है कि केस आया था तब मुझे पहली बार पता चला था कि कोई थोड़े पागल लोग होते हैं जो पहुंच जाते हैं. ऑनेस्टली मैं भी थोड़ा पागल रहा हूँ, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट. मैंने इंजीनियरिंग सर्विस में 3 ऑफ अक्का लिया है और बीटेक में 3 ऑफ अक्का लिया है, एग्जाम नहीं देके.
ठीक है, जो मुझे लगा मैं सीखा नहीं था टाइम IIT में। ठीक है, सो मैंने थोड़ा बहुत एफर्ट किया, कोशिश की मैंने लगभग 2-3 साल पहले से। ठीक है, अभी भी मैं मनोरंजन के स्कूल में थोड़ा पढ़ा रहा था, एंड फाइनली रियलाइज कि इट डजंट वर्क आउट। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वापस जा सकूं, या ये कह लो कि पैसे के झटके लग गए हैं। ठीक है, तो वो हटता नहीं है। एक्चुअली मुझे ये पूछना था, एजुकेशनल डेटा माइनिंग थीम के बारे में आपको जानकारी? तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बैंगलोर में, पहले फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में इसमें काम किया है मैंने। Okay. और एजुकेशनल डेटा माइनिंग का यूनिवर्सिटी में और CMU में काफी सारा है। डेटा माइनिंग की टेक्निक्स जो है, okay, वो एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। डुओलिंगो इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ दैट। okay, और कई सारे और हैं, लर्न लैब करके एक है CMU में, और देगा एक राह रेड्डी है कोई, जो IIIT हैदराबाद के बोर्ड पे है, and he's a Turing Award winner. He had started one group of it. You have any? नहीं, मुझे पता नहीं उस बारे। I think then we can definitely talk about something. Okay, so basically है कि अगर अच्छा बोलो ऐप आपने यूज किया है, बोलो ऐप करके या एप्स यूज किए हैं, गेमिफाइड लर्निंग। ओके, अच्छा ओके, टेक आप ओके, टेक वाला बंदा, ठीक है, जो वहां जा नहीं सकता, ठीक है, ओके, क्या बिहार में वो क्या चीज ला सकता है? बहुत सारे काम है जो जैसे बाहर मान रह लीजिए के कि किए जा सकते हैं। देखो बहुत कुछ है जो ऑर्गेनाइज करने को है, जो अगर एक नेटवर्क ऑफ पीपल हो, मैंने बताया ना, जैसे जब मुझे 6 महीने तक सैलरी नहीं मिली, तो आई वाज सस्टेन्ड बाय माय फ्रेंड्स हु वर नॉट देयर फिजिकली। तो फर्क तो पड़ता है, हर किसी का अपना भूमिका है। आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपके नहीं है, प्रकृति द्वारा तय किए गए। तो आप उसको ही प्रसाद समझो भगवान कि यही मेरे लिए तय किया गया, और उसमें फिर अब वहां से क्या कर सकते हैं, ये बेस्ट आप ही देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे मन में जो बातें आती हैं कि बिहार को अगर कभी बदलना है तो वो तभी बदल पाएगा जब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी दिखनी शुरू हो, क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो एग्रीकल्चर ही है। यहाँ आसपास में अब जैसे ये जो हमारा जो जगह है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस चीज का, जिसके कारण बिहार गाली माना जाता है, और यहाँ पर आसपास में सब फार्मर्स ही, मेजॉरिटी फार्मर्स हैं। तो जब तक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी की संभावना नहीं जागेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। आई थिंक अ लॉट कैन बी डन टुवर्ड्स दैट in developing such apps where selling and purchasing becomes easier, where insurance becomes easier. A lot of these people don't know, और आप शायद कभी बहुत छोटे छोटे ट्रिप्स करके इस तरह के लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं। देखो, मुझे एक बार मेरे गुरुजी ने कहा था कि मुझे ये मत बताओ कि तुमने न्यूयॉर्क में कितने फ्लैट ले लिए और मुंबई में कितने फ्लैट ले लिए और दिल्ली में। लोग जाके अपनी मैंने ये कर लिया गुरुजी, ऐसा बताने के लिए उनको बता रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम जहां से हो वहां जाके तुमने क्या किया। तो अगर आप साल में 1 महीने के लिए भी वहां जाकर के कुछ करते हो ना, तो हाउ यू लिव योर लाइफ, हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, वो जो आप अपने गांव के घर में रह के 2 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते के लिए दिखाओगे ना, उससे फर्क पड़ेगा। आप वहां 3 हफ्ते के लिए ही आए हो, लेकिन आप अपने जातीय समीकरणों के बाहर जाके लोगों से मिलोगे, फर्क पड़ेगा उससे। लोगों में माहौल बनेगा कि अच्छा आजकल तो ऐसा होने लगा है भाई साहब, लोग बात करेंगे इस बारे में, है ना। आप 3 हफ्ते के लिए गए हो गांव, मान लो आपको उतनी छुट्टी मिली या 1 हफ्ते की छुट्टी मिली, लेकिन आप सबके यहाँ गए अपनी जातीय समीकरण के बाहर, फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ा? फर्क पड़ सकता है। आप वहां 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए गए, वहां पे गोबर गैस प्लांट लगाने के बारे में बात करके आ गए, और ये सारी चीजें जहां भी चल रही है ना, वो किसी न किसी सनकी व्यक्ति के कारण ही चल रही है। गांव में गोबर की बहुत अधिकता है, वहां पे इस तरह का वो सारी चीजें जो रॉ मटेरियल चाहिए गोबर गैस प्लांट को, वहां पे बहुत है।
लेकिन किसी को मतलब ही नहीं, किसी को पता नहीं। वो जो सरपंच है उसको तो एकदम ही मतलब नहीं। आपके जैसे कुछ लोग जो जिनको संसाधनों को व्यवस्थित कैसे करना है पता हो, वो 2 दिन के लिए जाएंगे और वो प्लान आउट करके आ जाएंगे। फिर अगले बार 2 महीने बाद 2 दिन के लिए जाएंगे, उन्होंने 4 लोगों की विजिट तय कर रखी है। हाँ, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो ऐसा करके आए। लोगों को ये एजुकेट करके आ सकते हैं कि केमिकल फार्मिंग किस प्रकार से उनको सिर्फ नुकसान कर रहा है, मतलब उनकी जमीन खराब कर, या जो ही है, आप और लोगों को एजुकेट कर सकते हो, फर्क पड़ सकता है। बस मन में ये इच्छा हो कि मुझे अपने जमीन को, अपने रूट को कुछ देना है। ये दौड़ जो हमारे अंदर है ना कि मुझे और चाहिए, मेरा क्या होगा, इस प्रश्न पे जब विराम लगे तो फिर देखिए आपके अंदर से ये ज्वाला निकलेगी, ये ज्वालामुखी की तरह निकलेगी कि मैं क्या दे सकता हूं। क्योंकि जितना मन संतोष उसमें पाता है ना, nothing can match it. मेरा दोस्त है, IIT कानपुर का ही है, कौशलेंद्र यादव, वो भी फार्मेटा का CEO है, और वो अमूल मॉडल बना रहे हैं फार्मर्स के लिए। तो मैंने काफी बार वॉलंटियर भी किया था। वो इंटरेस्टेड है बिहार में एक्सपेंड करने के लिए, बट यू नो दे डोंट हैव पीपल जो वहां पे थोड़ा कर सके। Maybe somebody like you can become that. नहीं, मुझे तो एजुकेशन से बाहर देखना ही नहीं है। हाँ ठीक है, एजुकेशन में भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो, हाँ, टेक्नोलॉजी has given answers to so many questions that our real life has posed. मतलब काफी डेलिबरेट चॉइस है, ठीक है, क्योंकि जिसके पास जमीन तो है उमेश वो जी, तो आप खेती जो में कुछ पूछ रहे हैं ना कि आप एजुकेशन में रह करके आप बिहार या इस तरह के अपने अपने गांव घर को क्या दे सकते हो, तो उसके आंसर्स बहुत सारे हैं। देखो, कोई टीचर नहीं चाहता है, मेरी पत्नी भी एक शिक्षिका है, नहीं चाहते हैं किसी दूर दराज के इलाके में जाके पोस्टिंग लेना, है ना। एंड दैट्स व्हाई आवर विलेजेस, डिस्पाइट ऑल द रिजर्वेशंस दैट गवर्नमेंट हैज गिवन, जो एक्चुअल नीडी लोग हैं ना, जो एक्चुअल वो लोग हैं जिनको रिजर्वेशन देना है, वो लोग उस बेसिक एजुकेशन को पा ही नहीं पाते हैं जिसके बाद वो उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या हो, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एक टेलीविजन सबके घर में है ना, एक टेलीविजन वहां क्यों नहीं लग सकता है जिसमें सब बच्चे आए और अपना बोरा बिछाकर वहां पढ़े और उसमें क्लासरूम चले। जो जैसे रेलवे स्टेशन में चलता है ना कि इंक्वायरी काउंटर लगा है जिसमें कोई व्यक्ति दूर कहीं मुंबई में बैठ करके आपके रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के बारे में सारी सूचना देता है। That has happened, na? That happens in Patna, that happens in Ara. Why can't that happen in a village? So technology, something in which you are an expert, you can give an answer. Yeah, you can. So let's think about it. And when you have a credible idea on which you want to work, so let's talk to people who have done such things. हर चीज का solution टेक्नोलॉजी एक एक करके देती जाए। अभी मैंने एक्चुअली 2-4 इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, ठीक है, ऐसे स्कूलिंग में, लेकिन यू नो आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि जब मैं यूएस का देखता हूँ, ठीक है, और कोर्सेरा पे इस पे कोर्सेज करके सब का देखा है, और जब मैं इंडिया का देखता हूँ तो काफी अंतर होता है। यहाँ पे तो मार्क्स, एग्जाम पास करने पे इतना ज्यादा फोकस है, लर्निंग के तो बात ही नहीं होती। वो मैं और मेरे लोग ही हैं, है ना, वो मैं और मेरे लोग ही हैं जिनमें ये कमियां हैं, तो हम लोगों को मिलके उसको हल करना पड़ेगा। जब बच्चे मुझ पे शुरुआत में नाराज होते थे और गुस्सा दिखाते थे, तो मैं बड़ी सहजता से उसको लेता था, क्योंकि मुझे समझ में आता था कि ये मेरी बिरादरी, मतलब शिक्षक की बिरादरी ने ये किया है कि क्लासेस नहीं लिए हैं, कई सालों तक क्लासेस नहीं लिए गए, तो क्या मुझे उसका सुनना नहीं पड़ेगा? आई हैव टू बी विलिंग टू टेक दैट। देखो, आप अगर एक पाकिस्तानी यहाँ पर आए, एक सीधा साधा पाकिस्तान का व्यक्ति जिसको पता भी नहीं कि भारत का बंटवारा कब हुआ, भारत से बंटवारा कब हुआ, वो सिंपल सा आदमी अपना रोटी चावल इकट्ठा करता है, लेकिन वो यहाँ आएगा तो भारत में कई लोग उसको पत्थर मारेंगे कि नहीं मारेंगे? उसने क्या गलती की है? कोई गलती नहीं की। सिंपली कि आप, व्यक्ति का सिर्फ कर्म नहीं होता है, समुदाय का भी कर्म होता है, समाज का भी कर्म होता है, बिरादरी का भी एक कर्म होता है। तो कोई व्यक्ति जो भारतीय है वो पाकिस्तान में गया तो भारतीय होने के कारण उसको वहां पत्थर खाना पड़ सकता है, इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आखिर हमारी बिरादरी के लोगों ने जो तोड़ा है सिस्टम को, है ना, क्रमबद्ध तरीके से तोड़ा है, उसकी कीमत हम लोगों को अदा करनी पड़ेगी।
आज कोर्सेरा में जो कोर्सेज मिल रहे हैं वो हमारे यहाँ के कोर्सेज नहीं बन रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन आप और हम लोग मिलके उसको कर सकते हैं, पूरा उसको भर सकते हैं। और वो देखो यही बात है, फिर बिहारी को ठीक करने के लिए गुजराती नहीं आए, तो आपको हमको ही मिलकर के उस गड्ढे को भरना है जो गड्ढा क्रिएट हुआ है। चलिए ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट ठीक है, आई गेस इट्स टाइम, देर हो गई है, हम लोग एक बार अतिका सौरभ अब कोई है, एक बार और चेक कर लो जस्ट इन केस, अदरवाइज विल रैप। सौरभ, निशांत यू कैन अनम्यूट सौरभ अभी अगर है। हाँ, हाय सौरभ। Hi sir, good evening sir. Am I audible? Yes, you are. हाँ सौरभ। Oh, sir, actually I have not question, but I feel very motivated from you. I too from Bihar, and I faced what the student are facing here. It is not problem of one college. It is problem of almost 90% of the college, and that problem came from that teachers only. I want to say that some of the teachers don't want to teach, and some of the students don't want to study. But among the 5 students, I saw, sir, there must be 2 or 3 students who want to learn. और ये तभी हो सकता है जब टीचर पढ़ाना चाहेंगे। और अगर ये बात सही है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर एक टीचर पढ़ाने की कोशिश करेगा तो बाकी सेल्फ मोटिवेटेड फील करके खुद पे खुद पढ़ाएंगे। और ये तभी, और बिहार में ये होना जरूरी है, अच्छे जगह से इंस्टीट्यूट से टीचर आना यहाँ मस्ट जरूरी है। तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, यही बोलना चाह रहा था, कुछ नहीं। अच्छा देखो, मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहता हूँ। तुम सब लोग जो, मुझे लग रहा है कि who have been a volunteer in the sense of who you define yourself as, you are becoming a volunteer in your being. अक्सर ये बात तुम्हारे सामने आएगी कि what I am doing, is that significant enough? Will that be able to make a difference? वही अकेला चना भाड़ में फोड़ता वाली। Yes sir, and the main thing is that we don't want to lose our self-respect. Why is self-respect so important? Sir, it is because you have said that all things come from our eternal. Self-respect, I want. Yes, that sir. insight from which everything comes is infinite. It's infinitely powerful. It is not afraid of anything. It is that जिसके बारे में कृष्ण कहते हैं ना कि इसको कोई छू नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता, कोई जला नहीं सकता। मैं तुम लोगों को वो बताना चाहता हूँ कि जब कभी मन में ये डर आए कि whatever I am doing, is that insignificant? Will that ever be able to make into something that is useful? Then know this. हम सब लोग ना infinitesimal ही होते हैं. All of us are a small dx, all of which adds into this infinity of what this world is. But इस सारे ब्राउनियन मोशन में जो सारा रैंडम हो रहा है ना, उसमें if your dx is aligned with mother nature, it is aligned with the nature's direction of evolution, then that dx will make a difference. जो लोग इंटीग्रेशन सीखे हैं ना, वो वाला डायरेक्शन सर्वाइव कर जाता है जो मेन डायरेक्शन में रहता है, बाकी सब कैंसिल हो जाते हैं फाइनली इन द इंटीग्रेशन, इजंट इट? सो तुम कितना छोटा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, इसमें मत फंसो तुम. Is that contribution aligned with mother nature? Is that contribution in line with the plan of evolution as you see? Ensure that. उसमें तुम सोचो, उसमें तुम थोड़ा समय लगाओ कि am I aligned with evolution का direction? देखो, there is a direction of evolution. Notice that कि एक समय था जब मर्द और पुरुष, मर्द और औरत में भी कितना भेदभाव था ना. औरत का स्थान कैसे था, है ना? सिंपली बिकॉज फिजिकल स्ट्रेंथ, वो भैंस वाली शक्ति, शरीर की शक्ति ज्यादा थी पुरुष के पास. फिर धीरे धीरे ये बदला, है ना, बदल गया ना.
महिलाओं को बराबर मिलने लगा। उसके बाद फिर देखो जो रंग भेद था कि इस रंग और उस रंग में जो भेद था वो धीरे धीरे बदलते गया। फिर धीरे धीरे एक ही रंग में, जैसे हमारे यहाँ जातियों में होता है ना, रंग का भेद नहीं होता, जन्म का भेद होता है, जो कि छिपा हुआ है, दिखता नहीं है, पता नहीं लगता, वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू। देखो प्रकृति किस तरफ जा रही, प्रकृति एकाकार होने की तरफ जा रही, उस तरफ हो क्या तुम? Are your efforts stepping in that direction? If yes, it will add up and remain. Everything else will become Brownian movement and it will just die out. मुझे तो इतना ही पता। अच्छा देखो, we have to remain as a network, as a network of people who want to speak up no matter what. We will always speak what is right. अगर ऐसे मंशा है तुम्हारी तो रिमेन एज ए नेटवर्क, भूलो नहीं। ये जो लोग 4 जुड़े हैं, 10 लोग, 15 लोग जुड़े हैं, इन सब लोगों को याद रखो। देखो जब मेरे साथ वो घटना हुई थी जिसके बारे में तुम में से कुछ लोगों को पता होगा, तो मैं एक ही बात कहता था, मुझे मेरा कोई परिचय पहचान नहीं था। 4-5 दिनों तक तो मेरा FIR भी नहीं हुआ, लेकिन मैं यही कहता था कि मेरा कर्म ही मेरा कवच है, कुछ तो होगा, देखिएगा। और 17 इयर्स में कितने टीचर्स पीटे गए, 17 इयर्स मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ रह चुकी है, कितने टीचर्स पीट दिए गए हैं। किसी का तो मैं बता रहा था ना कि वो पीट के उसको मार दिया गया, ऑन स्पॉट डेथ हो गया था 2 टीचर्स का, दोनों फिजिक्स के ही थे, वहीं पर इसी यूनिवर्सिटी में, इसी डिपार्टमेंट में। लेकिन पहली बार मेरी वाली घटना में जब किसी ने मुझे थप्पड़ मारा था, बस वो जेल गया। क्यों ऐसा हुआ पता है? Because somebody from IIT Kanpur, it really is that, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, somebody from IIT Kanpur took it up, और उसने किसको फोन लगाया, क्या नेटवर्क लगाया उसने, and he connected the case and he did not talk to me. Even today I have not talked to him, but मेरे पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आरा का, मेरे डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट का फोन आया, and he said कि मुझे आपके बारे में पता लगा, ऐसा ऐसा हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, आके मुझसे मिलिए। एंड देन उसने चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस तक मेरी बात रखी। दैट पर्सन हैज नॉट टॉक्ड टू मी इवन टुडे, बट ही मेड अ डिफरेंस। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? सो हम सब लोग कनेक्टेड रहेंगे ना, तो कभी मैं तुम्हारे लिए वो काम कर पाऊंगा, कभी तुम उसके लिए काम कर पाओगे। People on whom you can just trust, not because they are Sharma, Verma, Jha, simply because they are who they are. They are what Mother Nature has wanted them to be. ठीक है, चलो। Thank you so much Bhaiya for coming. It was an absolute delight to listen to you. सबको काफी मोटिवेटिंग लगा होगा ये टॉक, आई एम श्योर। सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा अपने लिए भी, और वॉलंटियर्स के बेसिस पे भी हम लोगों को उसमें भी काफी मदद मिलेगी। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। आई थिंक विल लीव नाउ। भैया। ओके, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया।